Praise the Lord, highest praise church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our this week's Tuesday evening devotion time. प्रभु को महिमा देते इस अच्छे समय के लिए. God is good all the time and all the time. Our God is a good God. Hallelujah. Last week we were all getting excited about the fact that very soon our churches will open. Overall Central India में government ने permission दिया है for churches to open from the 8th of June. लेकिन because of all the cases that we are seeing in Maharashtra government has taken a strict rule that as of now कलीसिया या फिर religious centers open नहीं हो रहे public के लिए. So maybe we'll have to wait for some more time, but don't lose hope. Very soon God will open ways for us. लेकिन तब तक we will come to your homes through our little devotion time. I thank God for these times when even through these online services, somewhere we are able to touch people's lives. और खास करके जब आप लोग का messages आते, आपको calls आते कि pastor this devotion was good. ये जो word था हमारे लिए था. Last Sunday का service was powerful. We were blessed. Those are all things that really encourage us, and I want to thank you all for keeping us in your prayers. Hallelujah. तो आज शाम का समय का जो डिवोशन के लिए मेरे मन में एक विषय जो मैं पिछले दिनों में आई है, रेड समवेयर एक नोट पढ़ा. It is difficult for atheists to believe in God because they do not see God. They said we do not see God. फिर वो विश्वास नहीं करते परमेश्वर पे क्योंकि वो देख नहीं सकते. लेकिन यही एथिस्ट आज घर के अंदर डर कर बैठे हुए because of a coronavirus that they've never seen. या फिर they are scared and sitting inside their homes believing there is a coronavirus which they've never seen. Which means आज दुनिया में we are able to believe in things which we do not see. Virus is something that we never see, but we are believing, we are scared. But many a times we are not able to believe in a God who has created everything just because of the fact that we don't see Him. Hallelujah. That is why many a times आज मैं उसी के आधार पर एक छोटा विषय आपके सामने ले आऊंगा. It's a pure Bible study. ये एक encouraging word नहीं है, but this is something in information. या फिर एक Bible study है purely on one of the most क्या बोलते, many people get confused with this topic called Trinity. हम लोग कहते हैं त्रिएक देव या फिर the Trinity God. वो एक विषय पर कई बार मैंने लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हुए देखा. पिछले दिनों में भी हमारे कलीसिया के somebody asked me question on Trinity. So I thought I will bring that concept before you. What is Trinity? उससे पहले there is a common question that these atheists and the world ask. If everything needs an origin, who created God? परमेश्वर का भी एक origin होना चाहिए. That is what एथिस्ट लोग या जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, नास्तिक, वो कहते हैं कि अगर सभी चीजों का एक ओरिजिन, एक प्रारंभ, एक आरंभ होना है तो परमेश्वर का आरंभ क्या है? हु क्रिएटेड गॉड? हु मेड गॉड? वेयर डिड गॉड कम फ्रॉम? मेरा उसका एक ही चीज मैं कहूंगा, इफ गॉड हैज टू बी क्रिएटेड बाय समबडी देन दैट पर्सन हैज टू बी गॉड. है कि नहीं? अगर परमेश्वर को बनाने वाला कोई है, विच मीन्स अगर मैं कुछ चीज को बनाना हूं, विच मीन्स आई हैव गॉट मोर पावर देन व्हाट आई हैव मेड. इजंट इट? आज अगर मेरे बच्चे मेरे सामने में बैठे, नेथन एंड जॉर्डन, आई हैव नॉट क्रिएटेड देम बट दे आर माय चिल्ड्रन, लेकिन दे कैन नॉट बी मी. Which means I am above them. अगर मुझे बनाने वाला कोई है, then they are more powerful than me. इसी तरह से अगर परमेश्वर को क्रिएट करने वाला कोई है, then they became God. Which means ये एक question itself is a wrong question. You know what? How that question is? वो question ऐसा है कि it doesn't make sense. अगर आपको पूछो कि how does blue smell? या फिर ये जो कलर ब्लू है वो देखने का चीज है, उसे आप स्मेल नहीं कर सकते. अगर आप कोई आपको पूछता है हाउ डज ब्लू स्मेल या फिर हाउ डज रेड कलर स्मेल, देन यू विल नॉट हैव एन आंसर बिकॉज दैट इज अ क्वेश्चन विच हैज नो ट्रूथ या फिर एक फैक्ट नहीं है. वो सही क्वेश्चन, इट्स अ नॉनसेंस क्वेश्चन. इसी तरह से है, इफ somebody ask a question who created God, you should laugh at them because if somebody has to create God, then that becomes God, isn't it? Which means Bible के अनुसार
We do not, the Bible says God was not created, but he existed from the beginning. Now, what is that beginning? We do not know, because Bible speaks about a God who has no beginning and no end. He is the Alpha and the Omega. यानी he is there from the beginning. या फिर आप जितना भी beginning सोच सकते हो, उसके भी आगे से हमारा परमेश्वर था, और he simply exists, which means अगर आज के आपके बाद अगर कोई अगर आपको आगे पूछे who created your God, laugh at them and ask them the same question. Can you please smell blue or red and tell me how does it smell? They will not have an answer. Tell them this is how your question is, because our God simply existed from the beginning. Hallelujah. So God is uncaused and uncreated. He is not created by somebody, या फिर कोई चीजों का एक फल या फिर रिजल्ट नहीं है परमेश्वर. He was there. वो पहले से है, आरंभ से है, and nobody is before him, nobody is after him. It's all he's like the supremo. Hallelujah. That is what we can understand and believe in from the Bible. God is uncreated creator who created the universe and everything in it. Write it down. God is the uncreated creator, uncreated creator who created the universe and everything in it. वो ऐसा परमेश्वर है जिसे किसी ने बनाया रचाया नहीं, वो पहले से था, and he is the one who has created everything in this universe. Hallelujah. So that's the God that you and I, we serve. So coming back to our topic today, Trinity. Trinity क्या है? ये एक विषय है. मैंने I think I have taken a Bible study on this some years back in our church, but I thought I will speak about Trinity because people still have question on Trinity. Trinity क्या है? Trinity is not a biblical term. या फिर वो बाइबल में आप जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक आप पढ़ो, you will never find the term Trinity. हम Trinity कहते हैं, लेकिन Trinity जो वर्ड शब्द बाइबल में कहीं पर भी आपको मिलेगा नहीं. It comes from a Latin word, यानी ये Trinity जो वर्ड है, it comes from a Latin word which is Trinus, T-R-I-N-U-S, Trinus, Trinus है, Trinus है, T-R-I-N-U-S, जिसका मतलब है threefold. हम कहते हैं ना threefold, fourfold. This is called threefold, threefold. उसका मैंने एक ही सिंपल सा मैंने एक अर्थ लिया. What does threefold means? आप लोगों को समझने के लिए, ट्रिनिटी को समझने के लिए मेरे पास सबसे सिंपल सा एक उदाहरण है, वो है दिस पेपर. सी दिस इज अ थ्री फोल्ड, है कि नहीं? ये तीन फोल्ड है. इट इज वन पेपर, है कि नहीं? दिस इज वन पेपर. इट इज नॉट सेपरेटेड, बट इट इज थ्री फोल्ड, फोल्डेड इनटू थ्री different या फिर three equal parts, which means Bible says there is one God. परमेश्वर कहता है there is one God but three different personalities. How do they work? They work together. At the same time they can work separately too. That is what threefold is, Trinity. आपका simple understanding के लिए मैंने ये पेपर फाड़ के ऐसा I folded it so that you will understand. They are not अलग अलग, दे आर गॉड. उन लोग तीनों परमेश्वर है, एक ही पेपर है, लेकिन यू कैन फोल्ड इट इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स. अभी उसके लिए मैं उसी वचन को मैं आपके सामने लाऊंगा बाइबल के अनुसार, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. हालेलुया. द बाइबल सेज देयर इज वन गॉड. देन हाउ ट्रिनिटी? ओके. Is it three names given to one person? These are questions. ये जो है कई लोगों का क्वेश्चन है. Is it three names given to one person? एक व्यक्ति का क्या तीन नाम है? और three person as God, या तीन व्यक्ति है जिन्हें परमेश्वर का दर्जा या फिर गॉड कैटेगरी में तीन लोग आते हैं. There is only one God. इन वचनों को आप देख लीजिए, आप लोग का just write it down. I will not be able to explain all the verses, लेकिन आप लोग अपना बुक लेकर I am giving you कई वर्सेस मैं दूंगा, उस वर्सेस को आप लिख लीजिए, टॉपिक्स लिख लेना. After the study, you will go and meditate. You will check those verses. You will understand what I am saying. मैं जो बोल रहा हूं इस विषय को आप क्लियरली आज समझ पाओगे. What is Trinity? या फिर परमेश्वर, खुदा, बेटा, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये क्या है आज आपको समझ में आएगा.
देयर इज वन गॉड कहां पर लिखा हुआ है? डिटोनमी चैप्टर 439, राइट इट डाउन, आप लोग लिख लीजिए। डिटोनमी 439, डिटोनमी 6:4, व्यवस्था विवरण ओल्ड टेस्टमेंट द 5th book, डिटोनमी 32:39, Psalms 86:10, Psalms 86:10, I will not be able to say in Hindi because हिंदी में मेरे वो नंबर्स बहुत गलत हो जाता है। एशिया 43, 10, 11, 12, 13 या फिर 10 से 13 तक का वचन, एशिया का 43 का, एशिया 44 verses 6, 7 and 8. Yeah, write down these verses. These are helpful for you. आपका बाइबल स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एशिया 44, 6, 7 and 8. एशिया 45 verses 5 and 6. एशिया 45 का 5 and 6. एशिया 45 का 21, 22. एशिया 45, 21, 22. मार्क चैप्टर 12 verses 29. मार्क का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 29. दीज आर ऑल स्क्रिप्चर्स, ये सब कुछ स्क्रिप्चर्स है। देयर आर मोर स्क्रिप्चर्स, लेकिन देयर आर सम ऑफ द स्क्रिप्चर्स दैट स्पेसिफिकली सेज देयर इज वन गॉड, एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। दुनिया में कहीं परमेश्वर नहीं, वचन के अनुसार देयर इज ओनली वन गॉड, देयर इज नो थ्री गॉड। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा, दे आर नॉट थ्री गॉड बट वन गॉड। वचन कहता है वन गॉड। हाउएवर बाइबल ऑल्सो मेंशंस थ्री इंडिविजुअल्स, यानी परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर कहते हैं उसमें भी तीन लोगों के बारे में कहता है, पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा, which is called the Father. Okay, some believe, listen to this, some believe that there is only one person with different titles. कई लोग सोचते हैं या फिर कई विश्वासी विश्वास करते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है और उनका 3 डिफरेंट स्टेटस या फिर टाइटल है। एज सिंपल एज मैं कहूंगा, अभी मैं एक व्यक्ति हूं, नैनन जोस एक व्यक्ति है, लेकिन मैं एक पिता हूं, मैं एक पति हूं, मैं एक पास्टर हूं। You're getting it? 3 different titles. I am a pastor, I am a husband, I am a father, I am a brother. These are all different titles. Some people believe इसी तरह से है परमेश्वर, ट्रिनिटी जब कहते हैं, वो एक व्यक्तित्व है और जिनका 3 अलग अलग टाइटल्स है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। That is one. But some believe वो ऐसा नहीं है। वचन के अनुसार व्हेन यू रीड द बाइबल, आप जब वचन को, स्क्रिप्चर को पूरी तरह से आप पढ़ोगे, क्लियरली पढ़ोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा, दे आर नॉट द सेम इंडिविजुअल। वो एक ही व्यक्तित्व नहीं है। दे आर 3 डिफरेंट what is it, separate and distinct living personal beings or individuals। यानी वचन के अनुसार जब आप बाइबल को पढ़ोगे, एक परमेश्वर है, लेकिन उसी में जब हम कहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, दे आर 3 डिस्टिंक्ट, दे आर 3 सेपरेट इंडिविजुअल, नॉट फिजिकल बॉडीज। वो फिजिकल बॉडी नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग जैसा फिजिकल बॉडी नहीं है। यीशु मसीह, दो जीसस केम एज अ फिजिकल मैन, लेकिन व्हेन यू स्पीक अबाउट फादर, सन एंड होली स्पिरिट, दे आर नॉट फिजिकल इंडिविजुअल्स, लेकिन दे आर लिविंग इंडिविजुअल्स। 3 डिफरेंट पीपल, 3 डिफरेंट पर्सनैलिटी, लेकिन all 3 of them possess the characteristics and privileges of God। यानी ये तीनों अलग अलग व्यक्तित्व है, but all 3 of them have the they enjoy all the characteristics, all the privileges, all the authority of God। जैसे मैंने कहा, ये अगर आप पेपर बोलोगे, ये एक पेपर है, सबका कलर क्या है? व्हाइट है। When you call it, it is a white paper with lines on it, it is the same material, सब कुछ सेम है। At the same time, it is 3-fold, 3 अलग अलग, they are not cut from each other, लेकिन they are 3-fold, they are one paper, एक परमेश्वर, लेकिन 3 different personalities। Hallelujah। I don't know if I'm able to explain it to you how clearly, इससे ज्यादा कैसे मैं उसको समझाऊं। See, because I'll tell you, many a times we do not understand everything from the Bible very clearly, because the Bible speaks about mysteries। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन
देयर आर लॉट ऑफ मिस्ट्रीज। हम कई बार हमारे जो फाइनाइट, हमारा जो थोड़ा सा ज्ञान, हमारा छोटा बुद्धि लेकर उस परमेश्वर का कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरह से कभी कभार समझ नहीं पाते, लेकिन ask the Holy Spirit to guide us, and I'm sure the Holy Spirit will help us to understand this concept also very well, because यही विषय मेरे यंग डेज में भी I would be very confused। मैं कई बार कंफ्यूज होता है, ट्रिनिटी क्या है, परमेश्वर क्या है, यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा क्या है। But when I really started studying about it is where this concept came into my heart, that it is threefold। परमेश्वर, एक परमेश्वर, there is only one God, लेकिन all three of them, उसी one God में पिता परमेश्वर भी है, पुत्र परमेश्वर भी है, पवित्र आत्मा भी है। All three of them, three different characteristics, three different personalities, characteristic नहीं, three different personalities at the same time, they all enjoy that status of one God, वो परमेश्वर, और वो ही है एकमात्र परमेश्वर। Hallelujah। Now when you read the Bible, when you read it, there are scripture that references that gives you three separate and distinct individuals in Godhead। यानी जब आप बाइबल को पूरी तरह से पढ़ोगे, क्लियरली पढ़ोगे, स्टडी करोगे, आपको ये क्लियरली पता चलेगा that they are not one person but there are three different person। जैसे मैंने लास्ट संडे मैंने कहा था कि this is the time of the Holy Spirit। जीसस ने क्या कहा? I am going, मैं जा रहा हूं, और मैं किसे भेजूंगा? पवित्र आत्मा को भेजूंगा। यानी टुडे हु इज इन द वर्ल्ड, आज दुनिया में आपका और मेरे सहायता के लिए कौन है? पवित्र आत्मा है। होली स्पिरिट को परमेश्वर ने भेजा। ही इज अ हेल्पर, ही इज अ कंफर्टर, ही इज आवर काउंसलर, ही इज विथ अस ऑलवेज। एंड वेयर इज जीसस राइट नाउ? यीशु मसीह का वचन के अनुसार यीशु मसीह इज सिटिंग ऑन द राइट हैंड ऑफ द फादर। वहां पर भी हमें पता चलेगा परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, ही इज सिटिंग एट द राइट साइड ऑफ द फादर। सो यीशु मसीह आज स्वर्ग में है, पिता के साथ है, और आज दुनिया में है द पर्सनैलिटी ऑफ होली स्पिरिट। थ्री पीपल, वन गॉड। हालेलुया। ओके, या उसका मैं एक और सिंपल सा मैं हमारे स्कूल डेज में, हमारे क्लासेस में दे वुड अपॉइंट मॉनिटर, 3 मॉनिटर, 4 मॉनिटर। कौन मॉनिटर है? हम 4 लोग मॉनिटर्स है। वी ऑल हैव द सेम प्रिविलेजेस। जब कोई आके पूछे द मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, हु आर द मॉनिटर, हम 4 लोग हम खड़े हो जाते। यानी ऑल 4 ऑफ अस हैव द सेम प्रिविलेजेस, सेम अथॉरिटी, एंड वी आर ऑल मॉनिटर्स। उसी तरह से एक परमेश्वर, लेकिन 3 डिफरेंट individuals in it। How do we come to know? अगर इसी को हम बोलकर हम खत्म करेंगे, I think I have got very less time more, but I will try and finish it जितना हो सके, I will finish it quickly here। Evidence that the Father and Son are 2 different individuals। यानी ये वचन को मैं जल्दी जल्दी आपको दूंगा। You write down those verses because there are many verses। बाइबल के अनुसार there are lot of verses that speaks about Father and Son are 2 different people, individuals, but with the same quality, same characteristic। Hallelujah। The Father and Son must be separate individuals। वहां पर पहला Hebrews chapter 1 verses 5, वहां पर हिब्रू, इब्रानी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 5वां वचन में the Bible says, I shall be to him a father and he shall be to me a son। वहां पर वचन कहता है I shall be to him a father and he shall be to me a son। That's one verse। Matthew 3:17, मत्ती सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, उसका 17वां वचन, वहां पर कहता है This is my beloved son who says, the father is saying, पिता कह रहा है ये मेरा पुत्र है। 2 different people। Matthew 17:5, मत्ती सुसमाचार 17 का 5, This is my son। फादर वहां पर कह रहा है, फिर से पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देख कह रहा है ये मेरा पुत्र है। John 3:16, we know that word, Father gave his son। पिता ने अपना पुत्र को दिया। John 5:17,
John 5:17. My Father is always at His work. Jesus saying, my Father is always at His work. या फिर यीशु मसीह अपने पिता के बारे में कह रहा है. Romans 15:6. Write down these verses. मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग लिख लीजिए, वर्सेस लिख लीजिए. Romans 15:6, 15:6. ओके. दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9वां वचन. दूसरा यूहन्ना, not the Gospel of John, the letter. Okay, 2 John chapter 1 verse 9. Have both father and son. वहां पर कहता है those who have both father and son, यानी वहां पर पिता और पुत्र के बारे में कहता है. Hebrews 10:5. Hebrew, इब्रानियों किताब 10वां अध्याय उसका 5वां वचन. वहां पर कहता है Father prepared a body for the son. वहां पर कहता है पिता ने एक पुत्र के लिए एक शरीर को तैयार किया. Two individuals, दो व्यक्तित्व को वहां पर देखते हैं. John 17, यूहन्ना 17 का पहला से लेकर 26 तक का वचन. John chapter 17 verses 1 to 26. वहां पर we see Jesus prayed to his Father. I will not pray to myself. Jesus did not pray to himself. यीशु मसीह ने खुद अपने आप से प्रार्थना नहीं किया. He prayed to his Father. He spoke to his Father. You getting it? Two different individuals वहां पर. Ephesians 1:20. अभी मैंने जो विषय कहा था, Ephesians 1:20. Where is Jesus today? Jesus is on the Father's right hand. यानी पिता परमेश्वर का दाहिने, I think the right hand में यीशु मसीह बैठे. उसका मतलब two different individuals, दो अलग लोग वहां पर हम पढ़ते हैं. John chapter 8 verses 16, 17 and 18. वहां पर कहता है Father and Son make two witnesses. यानी पिता और पुत्र वहां पर दो गवाह बन सकते हैं. दो गवाह, उसका मतलब दो व्यक्ति है. एक व्यक्ति दो बार गवाह नहीं बन सकता, लेकिन वहां पर कहता है two people, two witness. वहां पर they become two witnesses. John chapter 8 verses 16, 17 and 18. Okay. Jesus and Father, it says we. John chapter 14:23. यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय उसका 23वां वचन में कहता है Jesus and Father. वो आप उन दोनों को, he doesn't say I, he says we. Every time when he spoke about him and his father, he never used I. वो singular use नहीं करता है. He says we. Luke 23:46. Luke 23, very important word. Luke 23:46. Jesus said, I commit my spirit to you. यानी I commit, मैं मेरे आत्मा को मैं समर्पित कर रहा हूं. We know the last words of Jesus, यीशु मसीह का आखिरी वचन में वो कहता है कि I commit my spirit. What does that say? It simply says Jesus had a spirit separate from his Father. वहां पर यीशु मसीह के बारे में कहता है Jesus had a spirit separate from his Father, which means that is why Jesus is saying I commit my spirit. अगर यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक होते, या फिर if they were one person, how can Jesus give his spirit to his Father? लेकिन Jesus says I commit my spirit to you. Now when you read the Bible, these are verses, ये जो मैंने आपको वचन दिया, this is about father and son, यानी पिता परमेश्वर और पुत्र, ये दो व्यक्तित्व है, वो मैंने आपको कहा उसका वर्सेस था. नाउ स्क्रिप्चर डेमोन्स्ट्रेट्स थ्री बीइंग्स, यानी तीन इंडिविजुअल्स को साथ में, कई वचनों में हम पढ़ते हैं कि उन लोग तीनों साथ में, ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर. ओके, वहां पर जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 26, उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय उसका 26वां वचन और तीसरा अध्याय उसका 22वां वचन. इट स्पीक्स अबाउट यूज फॉर गॉड एंड क्रिएशन. वहां पर यीशु परमेश्वर कहता है लेट अस मेक मैन इन आवर लाइकनेस. इन आवर लाइकनेस यानी परमेश्वर वहां पर जो वचन कहता है कि हमारी तरह, नॉट वन पर्सन, हमारे तरह, प्लूरल वर्ड, लाइक आवर लाइकनेस. मैन हैज बिकम लाइक वन ऑफ अस. एक और वचन वहां पर कहता है मैन हैज बिकम लाइक वन ऑफ अस, यानी मनुष्य जो हमारे एक के तरह बने हैं. मैन हैज बिकम लाइक वन ऑफ अस. I'm just going quickly so that you will understand these verses. खाली उन वचनों को आप सोचना, उस verses को आप लिख के रखना, underline it so that you will be clear about what Trinity is. यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या है वो आपको समझ में आएगा. Now when we look at creation, हम जब
आरंभ को देखते हैं, परमेश्वर ने जो इस सृष्टि करता, वहां पर भी विसी फादर सन एंड होली स्पिरिट, दो तीनों व्यक्ति को वहां पर हम देखते हैं. फादर प्रेजेंट ड्यूरिंग क्रिएशन, Hebrew chapter 1 verses 2, John chapter 1 verses 1, 2 and 3. वहां पर आपको पता चलेगा फादर प्रेजेंट ड्यूरिंग क्रिएशन, यानी पिता परमेश्वर उस समय में था, यानी जब क्रिएशन हो रहा था वहां पर पिता परमेश्वर था. Hebrew chapter 1 verses 2. मैं जल्दी से वचन को पढ़ूंगा. Yeah, see, when you read that chapter 1 verses 1 and 2, where it speaks about Father who at various times and in various ways spoke in the time past to the fathers by the prophets, has in these last days spoken to us by his Son. यानी अपने पुत्र के द्वारा वो कहते हैं, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the world. यानी यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने, किन्होंने, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया को क्रिएट किया, बनाया, रचाया. यानी उसका मतलब है कि आई वांट टू प्रूव इट, द क्रिएशन, जब इस दुनिया को बना रहे थे, इस भूमि मंडल को बना रहे थे, वहां पर कौन था? पिता परमेश्वर था. दूसरा, सन वाज प्रेजेंट, यीशु मसीह भी वहां पर था. उसका वचन है जॉन चैप्टर 17 वर्सेस 5 एंड 24. जॉन, यूहन्ना का किताब, उसका 17 अध्याय, उसका 5 और 24वां वचन. एंड कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्सेस 16 एंड 17. कोलोसियर किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 16 और 17 वचन. इन वचनों में आपको पता चलेगा कि जब क्रिएशन हो रहा था वहां पर पिता परमेश्वर था, और यहां पर इस वचन के द्वारा आपको पता चलेगा कि पुत्र यीशु मसीह भी वहां पर मौजूद था जब क्रिएशन, यानी इस रचन, इस दुनिया को वो रचा रहे थे या फिर बना रहे थे, उस समय में यीशु मसीह भी था. एंड देन जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 2, मैंने ये वचन आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, द स्पिरिट ऑफ गॉड केम ओवर द एम्प्टीनेस, यानी वहां पर पवित्र आत्मा भी मौजूद था जब परमेश्वर इस दुनिया को बना रहे थे. इट वाज नॉट वन पर्सन बट ऑल थ्री ऑफ देम वर्किंग टुगेदर in the beginning when it says he made the heaven and the earth, यानी जब इस स्वर्ग को, इस आकाश को, इस धरती को बनाए, वहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 people working together. एक और वचन, all 3 of them present at Jesus baptism. यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय में भी हम देखते हैं कि ये सारे all 3 of them were there. इन लोग तीनों वहां पर थे, पिता परमेश्वर भी था, पुत्र यीशु मसीह भी था, पवित्र आत्मा भी था. उसका आप लिख लीजिए, लूक चैप्टर 3 वर्सेस 21 एंड 22. आई विल आल्सो टेक दैट वर्ड. आप लोग लिख लीजिए, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. लूक चैप्टर, लूका समाचार, उसका 3रा अध्याय, उसका 21 and 22. When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized, and while he prayed, the heaven was opened up, the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him, and voice came from heaven which said, For you are my beloved son in whom I am well pleased. देखो वो वचन आप अंडरलाइन कर लेना. This is speaking about the baptism. यीशु मसीह का बपतिस्मा. यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय में जीसस पानी में था, यानी उनका बॉडीली फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में पानी में था. वचन कहता है व्हेन ही बैप्टाइज, उनका बैप्टिज्म हुआ, स्वर्ग खुला और कौन उतर कर आया? पवित्र आत्मा इन अ बॉडीली फॉर्म, यानी एक फिजिकल बॉडी में एक डव की तरह, डिसेंडेड इन अ बॉडीली फॉर्म लाइक अ डव. एक डव, कबूतर के इसमें पवित्र आत्मा को हम देखते. The Holy Spirit came upon him and the heaven opened up and the Father spoke from heaven saying, This is my beloved son. यानी पिता का आवाज, पुत्र का बॉडी, फिजिकल बॉडी, बपतिस्मा, और पवित्र आत्मा उन पर आए. यानी 3 सेपरेट पीपल, 3 सेपरेट इंडिविजुअल्स और लिविंग इंडिविजुअल्स वहां पर हमें दिखता है यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय. 3 different people, but all 3 of them are God. They are one God. They work together. एक साथ, एक तरह से सोचते. Jesus said, if you have seen me, you've seen my Father. पवित्र आत्मा, the Bible speaks about the Holy Spirit. The Holy Spirit knows the will of the Father. He knows the heart of the Father. So all 3 of them, जो मैंने पहले कहा,
three different individuals, लेकिन they practice or enjoy the same powers, the same characteristic, the same authority, the same privileges of God the head, परमेश्वर. Hallelujah. एक और वचन 2 Corinthians chapter 13 verses 14, हम जो benediction में कहते हैं, है कि नहीं, कलीसिया का सर्विस के लास्ट में कहते हैं benediction में, 2 Corinthians chapter 13 verse 14, it says, may the grace of the Father, the love of Jesus and the presence of the Holy Spirit, तीनों व्यक्तित्व को वहां पर भी हम देखते हैं. Hallelujah. अभी एक और वचन पढ़ेंगे, Matthew chapter 12, मत्ती सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसका 31 and 32, which speaks about Jesus, distinguishing Jesus from the Holy Spirit, या फिर यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस वहां पर दिखता है. मैथ्यू चैप्टर 12, मत्ती सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसका 31 and 32. We know that word again. Last week मैंने कहा था वो सब. Matthew chapter 12 verses 31-32. Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven to him. यानी वहां पर कहते देखो, very important word 32. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven to him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven. वहां पर again difference, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा दो व्यक्तित्व है, वही दिखाता है. अगर कोई पुत्र के बारे में अगर कुछ बोले तो उसे माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा के बारे में गलत बोले वो माफ किया नहीं जाएगा. It speaks about two separate individuals. Hallelujah. So conclusion, I'll come. So my idea is that we understand what Trinity is. So Trinity जब हम कहें वो तीन व्यक्तित्व है, जैसे मैंने पहले दिखाया था. I don't know where is my paper gone. जैसे मैंने दिखाया था, it is threefold. एक परमेश्वर, लेकिन उनका three different personalities. That's the final word. Three individuals in one Godhead. Hallelujah. So I hope that this little Bible study was useful to some of you who had questions of what is Trinity. Are they three different people, or is it one person with three different titles? The Bible says three different individuals, three different living being, या फिर three personalities in one name or under one banner. God. That's our God, Trinity God. Pita, Putra, Pavitra Atma. Give importance to all three of them. God the Father, God the Son Jesus, God the Holy Spirit. Hallelujah. I hope you were blessed with this little devotion or the Bible study about Trinity. आइए हमारे आंखों को बंद करके we will pray. हमारे परम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे शाम के समय के लिए. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए. धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपका प्यार के लिए. Thank you Lord, Holy Spirit, for being with us. We thank you that you are with us today. प्रभु आज हमने जो विषय को सीखा, प्रभु हमारे जिंदगी में ये एक आशीष का कारण बने. खास करके प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते प्रभु. हर एक व्यक्ति जो आज हमारे अपने अपने घरों में बैठे प्रभु, पिछले 12 हफ्तों से हम अपने घरों में प्रभु, हमारा आशा, हमारा होप यही है कि वेरी सून वी विल सी अ चेंज इन दिस एटमॉस्फेयर. प्रभु धन्यवाद करते इस नए महीने जून के लिए. इस महीने के आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु हमें विजय से विजय की ओर ले जा प्रभु. हम जैसे आरंभ किए वैसे नहीं हो हमारा ये अंत, ये महीने का प्रभु. वी आर प्रेइंग दैट बिफोर दिस month ends, we will see a huge miracle in our city, in our nation and in the world, and we will be set free to worship you in truth and in spirit. कलीसिया खुल जाए प्रभु. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी नाम की महिमा हो प्रभु. खास करके हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं. हर एक पर तेरी सुरक्षा, तेरा प्रोटेक्शन, तेरा फेवर रहे प्रभु. कोई कमी घटी किसी को न हो प्रभु. बट वी प्रे दैट योर प्रोटेक्शन एंड योर फेवर विल रेस्ट अपॉन
every single person. Continue to bless everybody, Father, Lord, in the days to come, Father. We thank you, God, for this time. If there's anyone who's sick right now, you will send your healing upon your people, Father God. Lord, we look forward for a blessed week ahead, Father. Continue to guide and lead us. Thank you, God, that you heard our prayers. In Jesus' most mighty name, we make this prayer. And all God's people say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. I thank God for this wonderful time. And I hope कि आप लोग ये छोटा बाइबल स्टडी से you were blessed. May the Lord continue to be with you. Till we meet again, stay home, stay safe.